Assalamualaikum dear students. Hope you are fine and doing well. I am Sana Aslan from University of Education, Lower Mall campus. To develop your process work and final projects, I have already discussed with you some main components of art. Today I will discuss about the aesthetics and the importance of aesthetics for your project. As you know that thesis includes a major part of practical work, I will assign you the work and I will check the work during online streaming and class timings. Aesthetics is a set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty. So ये concerned है nature के साथ और beauty को admire करने के साथ, beauty को appreciate करने के साथ. It's a branch of philosophy which deals with questions of beauty and artistic taste. So ये वो ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो डील करती है क्वेश्चंस ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट के साथ. आपका आर्टिस्टिक टेस्ट कैसा है, आप किसी चीज़ को क्यों पसंद करते हैं, वो क्यों खूबसूरत लगती है आपको, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड और फिर आप इन एस्थेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आर्ट पीस को डेवलप करेंगे. Aesthetics examines the nature of art and our experience of it. तो इसमें हम नेचर को एग्जामिन भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि हमारा इसके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस है, हमें नेचर में से कौन सी चीज़ ब्यूटीफुल लगती है, उसके अलावा कौन से कलर ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, तो फिर उनका इस्तेमाल करके आप अपनी पेंटिंग्स डेवलप करेंगे. Importance of aesthetics for your project. It deals with the nature of beauty and taste. As I told you that it deals with the nature. इसको जो है वो beauty और taste के साथ ये related है, उससे deal करता है और साथ साथ philosophy of art से भी. It examines subjective and sensory emotional values or sometimes called judgments of sentiment and taste. So your sentiments and your taste and your sense of admiration, nature of beauty, these all of the things are important और ये develop करते हैं किसी भी चीज़ को aesthetically खूबसूरत बनाने के लिए. A set of principles concerned with the nature and appreciation of beauty. तो आप किसी भी चीज़ को admire क्यों करते हैं, उसको appreciate क्यों करते हैं. The branch of philosophy which deals with questions of beauty and artistic taste. It depends that how something looks and feels. The definition of aesthetic is being interested in that fact कि आप किसी चीज़ में कैसे इंटरेस्टिंग होंगे, आपको वो चीज़ क्यों खूबसूरत लगेगी, आपको वो कैसी महसूस होगी. An example of someone who is aesthetic might be an artist. तो एक जो आर्टिस्ट है वो जो है वो अपने काम के अंदर एस्थेटिक्स की जो है वो बेहतरीन एग्जांपल्स प्रेजेंट करता है. एस्थेटिक मीन्स द प्लेजेंट, पॉजिटिव और आर्टफुल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. तो कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ जब प्लेजेंट महसूस होती है, पॉजिटिव और आर्टफुल उसकी अपीयरेंस होती है, तो वो एस्थेटिकली खूबसूरत होती है. An example of the word aesthetic is to say that a particular car is beautiful. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कार खूबसूरत लगती है तो उसके जो फंक्शंस हैं उन सारों से बियॉन्ड जाकर उसकी ब्यूटी आपके लिए मे भी ज़्यादा मैटर करती हो. फॉर एग्जांपल सम पीपल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दे वांट टू परचेज ग्रे और वाइट और ब्लैक कार. सो उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस के बाद उसके साथ साथ वो उसकी एस्थेटिकली अपीलिंग जो शय है उस पर भी जो है वो फोकस करते हैं और जो चीज़ उन्हें खूबसूरत लगती है दे लाइक टू हैव दैट. और बीइंग एन आर्टिस्ट यू कैन यूज व्हाट यू लाइक इन योर पेंटिंग्स. आपको जो कलर्स एस्थेटिकली खूबसूरत लगते हैं आप उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी पेंटिंग्स के अंदर. दिस ऑल ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड इनटू दैट. अपीयरेंस ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू इट्स ब्यूटी. Aesthetic is important because it helps us understand and judge the various qualities one will find in art. तो aesthetic इसलिए important है because ये हमें help करता है understand करने में और judge करने में about the various qualities जो कि किसी को भी art पे मिल सकती हैं, किसी भी art piece में वो found हो सकती हैं. तो उनको judge करने में aesthetic जो है वो आपको help out करता है कि how that painting looks like. It helps painters judge their paintings by themselves. तो aesthetics की मदद से artist अपने काम को खुद भी जज कर सकता है because in the very first look you will have a feeling कि whether
you are satisfied with the painting or not, or whether it is aesthetically appealing to you or not. अगर ऐसा ना हो कि वो उसको एस्थेटिकली जो है वो ना चेक करें कि वो कैसी लग रही है, तो शायद वो दूसरों पे रिलाई करेंगे कि वो जज करें उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में, और जब कोई और शख्स उस पर अपना तबसरा देगा तो हो सकता है कि वो भी सबसे पहले एस्थेटिक सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में तबसरा करे. द फर्स्ट थिंग can be that how the painting looks like, and the other forms will be decided or elaborated after that. Aesthetic is the study of beauty. In very short, if I talk about what is aesthetic, so it is the study of beauty, how a thing looks like. Beauty is important in life because it is representative of our values also. तो जो भी हमारी values हैं उनकी representation भी through beauty की जा सकती है. वैल्यूज खूबसूरत होती हैं क्योंकि वो हमारे बिकॉज दे डिफाइन अवर एक्शंस थ्रू लाइफ, को हमारे एक्शंस को डिफाइन करती हैं. ठीक है. विद एथिक्स वी आर एबल टू डिफाइन द नेचर ऑफ अवर वैल्यूज एंड अलाउ देम टू शेप अस इनटू द एसेंशियल गुडनेस दैट वी हैव विद इन अवरसेल्व्स. सो इसकी मदद से हमारी जो एसेंशियल गुडनेस होती है, जो हमारे अंदर होती है, वो उजागर होती है. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन. प्लेजर एंड एस्थेटिक कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जब भी आप अपने आर्ट पीस को देखते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप उसको देख के कैसा महसूस करेंगे, आपको उसको देख के कैसी फीलिंग आएगी, आप जो वो प्लेजर महसूस करेंगे या फिर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे. तो इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी कि जब आप गुड हेल्थ में होते हैं, जब आप सेहतमंद होते हैं, तो आप जो है वो प्लेजर महसूस करते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं. उसी तरह से good aesthetics are a reflection of pleasant systems, ठीक है, which is similar to good health. तो good aesthetics आपको इसी तरह का pleasant environment, pleasant system create करके देंगी आपकी पेंटिंग में, जिस तरह से आप महसूस करते हैं कि when you are in good health you feel satisfied and happy. Emotional clarity and positive sensory is less stressful than uncomfortable messes. तो अनकंफर्टेबल से अगर एक मेस क्रिएट हुआ है आपके काम के अंदर, तो वो एक स्ट्रेस को जन्म देगा, वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर देगा पेंटिंग में. जबकि इमोशनल क्लैरिटी और पॉजिटिव सेंसरी जो है वो उसकी निस्बत आपके आर्ट वर्क को इलैबोरेट करने में मदद देंगी. एस्थेटिक्स कैन बी डिजाइन्ड टू प्रोवोक एनी रेंज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस. विजुअल एस्थेटिक्स हैव दीज की एलिमेंट्स. अब जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए पेंटिंग बना रहे हैं, तो हाउ विल यू डिसाइड दैट वेदर इट इज एस्थेटिकली अपीलिंग और नॉट. सो आई एडवाइज कि आप उसमें अपने एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स को देखिए कि उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है. अमूमन जो की एलिमेंट्स विजुअल एस्थेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं वो कलर, शेप, पैटर्न, लाइन, टेक्सचर, विजुअल वेट, बैलेंस, scale, proximity and movement हैं. Others may also include. तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने कलर मेंशन किया है. तो कलर, जब भी आपने एक आर्ट पीस को देखा तो सबसे पहले शायद आप उसमें कलर को देखेंगे. ठीक है. अब पेंटिंग जिसमें बहुत ज्यादा एरिया पे रेड इस्तेमाल किया गया है, अब फिर वो विजुअली आपको किस तरह अपील करेगी, फिर शेप्स किस तरह के इस्तेमाल की गई हैं, टेक्सचर कैसा इस्तेमाल किया गया है, आया वो बैलेंस्ड है पेंटिंग या नहीं है. अगर बैलेंस्ड भी है तो किस तरह की बैलेंस्ड है, सिमेट्रिकल बैलेंस है या असिमेट्रिकल बैलेंस है, मूवमेंट है या नहीं है, आपकी आई रिवॉल्व करती है पेंटिंग में या नहीं करती, फोकल पॉइंट पे रुकती है या नहीं रुकती, उसके बाद जो चीजें आप मेन पे दिखाना चाहते हैं क्या वो ज्यादा नजर में आ रही हैं या बैकग्राउंड उनको डिस्टर्ब कर रहा है. तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको एस्थेटिकली अपीलिंग बनाने के लिए. इन एलिमेंट्स के इस्तेमाल से जो है वो आप गुड विजुअल एस्थेटिक जो है वो एक पेंटिंग में शो कर सकते हैं. Philosophers began to say that reason by itself could not explain beauty. So some philosophers say कि reason itself जो है वो beauty को explain नहीं कर सकती, क्योंकि it may have some rational properties, जैसा कि order है, symmetry है, proportion है. तो ये सारी चीजें भी किसी भी चीज को खूबसूरत बनाने में मदद दे सकती हैं. बट इट इज रियली एन एक्सपीरियंस नॉट एक्सप्लेन बाय रीजन अलोन. ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसको किसी रीजन की बेस पे एक्सप्लेन किया जाए कि जी दिस इज द पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से एस्थेटिक जो है वो एस्थेटिकली कोई चीज अपीलिंग होगी. बल्कि कुछ चीजें
जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया कि कुछ रेशनल प्रॉपर्टीज भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसा कि ऑर्डर, सिमेट्री, प्रोपोर्शन, रिदम एक्सेट्रा. So, aesthetic experience. It is understood through intuition and experienced with human feeling and emotion. अब यहाँ पे human feelings और emotions भी involved हैं और एक intuition भी और जो है वो experience भी included है. An aesthetic experience could include a mixture of feelings such as pleasure, rage, grief, suffering and joy. तो ऐसा aesthetic experience जो आपको किसी भी किस्म की feeling दे सकता है. कोई एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है वो आपको हो सकता है बहुत प्लेजर की फीलिंग दे, कोई जॉय की, और एक ग्रीफ की फीलिंग भी उसके अंदर आ सकती है. Kant interpret aesthetics as a field giving priority to form over function. तो Kant जो है वो इंटरप्रेट करता है एस्थेटिक्स को एक ऐसी फील्ड के तौर पे जहाँ वो कहता है कि he gives priority to form over function. तो वो कहते हैं किसी चीज की जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर उसकी फॉर्म जो है वो हावी हो जाती है जब हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं. कैसे? जैसा कि एक हॉर्स जो है वो बहुत अच्छा दौड़ता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कैसा दिखता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो एस्थेटिकली कोई चीज खूबसूरत कैसे होगी, किसी के लिए उसकी कौन सी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शायद किसी के लिए काला घोड़ा बहुत ज्यादा अपीलिंग हो एस्थेटिकली, इंस्टेड ऑफ इट कि वो दौड़ता कैसा है या वो मजीद क्या काम कर लेता है. हो सकता है किसी के लिए कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. सो फॉर्म जो है वो ही गिव प्रायोरिटी टू फॉर्म ओवर फंक्शन. Aesthetics and project look for beauty around you. So when you are working on your project, so aesthetics उसमें कैसे important होंगी, तो आप जो है वो सबसे पहले look for beauty around you, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखिए, उनमें से ब्यूटी फाइंड कीजिए, आपको क्या चीज़ खूबसूरत महसूस होती है. Appreciate all forms of art. आर्ट की सारी फॉर्म्स को अप्रिशिएट कीजिए. आप एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स का जो है वो भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए. आपको जो भी टेक्निक्स पता है आर्ट की, उन सब में से अपने लिए फाइंड करें कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको बयान करने के लिए कौन सी टेक्निक बेहतर रहेगी. लुक फॉर ब्यूटी इन योरसेल्फ एंड अदर. अपने अंदर और दूसरों में ब्यूटी को तलाश कीजिए. You can reject what seems unpleasant to you or unnecessarily includes shallow appreciation of beauty. आप उन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपको अनप्लेजेंट महसूस होती हैं या फिर जिनमें एक shallow appreciation of beauty होती है. That is not admirable. आपके लिए वो इतनी admirable नहीं है, so आप उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं. जो चीज़ें आपको खूबसूरत लगती हैं उन पर काम कर सकते हैं. Make aesthetically appealing works of art. तो बेसिकली आपको एस्थेटिक्स के बारे में बताने का मकसद ही यही था कि जब आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें, जब आप अपना सारा काम, अपना सारा प्रोसेस कर रहे हो, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी जो पेंटिंग्स हैं उसमें क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, टेक्निक्स का इस्तेमाल, वो सब कुछ होने के साथ साथ वो पेंटिंग एस्थेटिकली अपीलिंग भी हों. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टारी नाइट बाय विंसेंट वैन गो, तो इसको देखकर एक मुकम्मल पेंटिंग का तासुर सामने आता है. एस्थेटिकली ये बहुत खूबसूरत है. इसके बारे में मजीद जानने से पहले कि आप पेंटिंग देखें और सोचें कि इसके अंदर क्या बनाया गया और क्यों बनाया गया, फर्स्ट में जो आपने चीज़ देखनी है दैट इज़ कि वो एस्थेटिकली कितनी खूबसूरत है पेंटिंग. सो एक कंप्लीट होना एक पेंटिंग का, उसकी वजह से एक आर्टिस्ट को जो है वो एक सुकून सा जो है वो मैसर होता है. एक जो व्यूअर है उसको एक सुकून की फीलिंग आती है, एक कंप्लीट होने की फीलिंग आती है और उसको एस्थेटिकली खूबसूरत लगती हैं चीज़ें. मे बी ड्यू टू देयर कलर और कॉम्पोजिशन और शेप्स और ऑल द एलिमेंट्स जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए हैं. एक और पेंटिंग, ओथ ऑफ फराशी, अ वेरी फेमस पेंटिंग बाय जैक्वेस लुइस डेविड, न्यू क्लासिसिज्म की ये पेंटिंग है. और यहाँ पर भी आपको एक एस्थेटिकली अपीलिंग कलर्स, फॉर्म, आर्किटेक्चर का इस्तेमाल नजर आएगा. The first thing is that the painting is beautiful, it is balanced, और उसमें जो darks और lights का इस्तेमाल है. So all of these things are added and makes the paintings beautiful. So when you work on your paintings, make it sure that your paintings should look aesthetically appealing along with all the other things. तो इसके अलावा जो है वो these are some of the sources जिससे आप मज़ीद इसके बारे में जान सकते हैं. और रिमेनिंग जो है वो आई विल असाइन यू द असाइनमेंट
or you will work on it and see you on Zoom or maybe Google Meet. Thank you. Assalamu alaikum.